Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. And in the previous lecture, we were discussing the Vedic period, Vedic polity we have discussed. Now in this lecture, I will be discussing the third formula. Okay, third formula and third formula that is okay, third formula that is Vedic society. Okay, Vedic society. So before that, we have discussed two formulas, that is Rig Vedic economy and Vedic economy and Vedic polity, जिसमें हमने डिस्कस किया ऋग वैदिक और लेटर वैदिक की इकोनॉमी एंड पॉलिटी को. मैंने बताया आपको कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुई इकोनॉमी. Okay, so all these things. So in this lecture, I will be discussing the third formula to understand the Rig Vedic, to understand the Vedic society. Is that clear? ये याद रखिए. Now, third formula. Third formula, that is Rig Vedic, that is Vedic society. Vedic society. Okay, Vedic society. Now in Vedic society, Rig Vedic and later Vedic. Okay, Rig Vedic and later Vedic. Okay, now Rig Vedic society, कैसी society थी? Tribal society, tribal peoples. But in later Vedic period, after the invention of iron, discovery of iron, the society was classified. Okay, that means classified on the basis of Varna system. Varna system आ गया. That means later Vedic society was classified society. Classified society. Is that clear? Okay. Classified society. So this tribal society, what are the features of tribal society? That means clan based society. Okay, clan based society. Okay, now what is clan based society? That means people from one family. Is that clear? People from one family. People belong to family. Family represent clan. Okay, keep this in mind. Then in classified society, which system? Varna system. Classification based on Varna. Four Varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. These four Varnas. Okay, please remember this. Varna system. Okay, so Varna system, it is given under the 10th mandal of Rig Veda. 10th mandal. Okay, 10th mandal of Rig Veda. Okay, Varna system. Okay, and this Varna system, from where it came? This Varna system comes from Purushut. Okay, Purushutra. Purushutra. This Varna system came from Purushutra. That means origin of Brahma. Origin of ब्रह्मा. इसके पीछे भी थ्योरी है कि क्यों ब्राह्मण्स. तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के बॉडी पार्ट्स पे ही वर्ण सिस्टम बना है. ब्रह्मा के बॉडी में हेड को बोला गया ब्राह्मण्स, शोल्डर्स को बोला गया क्षत्रियाज. ओके, ये याद रखिएगा. शोल्डर्स क्षत्रियाज, थाई वैश्याज. ओके, एंड feet shudras. On the based on this, okay, varna system was classified. समझ में आ रहा है? इस बेसिस पे वर्णा सिस्टम आया है, ये याद रखिएगा. Is that clear? ये सारी चीजें याद रखिएगा. ओके, नाउ तो वर्ण सिस्टम आ गया था. ओके, देन
Then so Varna system, Rigvedic में क्या था? Clan based society, from one family society. Okay. Then second feature of Rigvedic period and this later Vedic. So Rigvedic period, important place to women. Okay. In this during Rigvedic period, women position was favorable. Important place was given to women. Important place for women. Women की एक अच्छी position थी. Okay. As women had the right to education, women had the right to attend assemblies. Okay. Women had the right to education. Education की right थी ऋग्वैदिक period में. Okay. Then women के पास, okay, ये याद रखिएगा, women के पास assemblies को attend करने की right थी. Okay. तो इस टाइम पे बहुत ही फेमस विमेन का नाम मैं आपको बता सकता हूं. फेमस विमेन कौन थी? लोपमुद्रा. ये याद रखिएगा, लोपमुद्रा. लोपमुद्रा. ये लोपमुद्रा कौन है? लोपमुद्रा वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य. ये याद रखिएगा, वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य. लोपमुद्रा कौन है? वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य. ये याद रखिएगा, वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य. ओके. लोपमुद्रा, ये याद रखिएगा. ओके. और किसकी बेटी थी? डॉटर ऑफ किंग विदर्भा. लोपमुद्रा डॉटर ऑफ किंग विदर्भा. इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा, बड़ा ही फेमस नाम है. तो विमेन की बड़ी अच्छी पोजीशन थी इस टाइम पे. ओके. एंड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड रिच पर्सन हैज नो कास्ट. रिच पीपल्स हैज नो कास्ट. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो अगर आप आईएएस बन जाओगे, ओके, तो अगर कोई आपसे कास्ट पूछे, उसी दिन गाड़ी चढ़ा देना उसके ऊपर अपनी, और बोल देना अब दोबारा मत पूछना. ठीक है? तो उस टाइम पे रिच पर्सन हैज नो कास्ट. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. बट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड आप वर्णा सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम आ गया था. कौन सा? आश्रम सिस्टम. यस, आश्रम सिस्टम. आश्रम system. Yes, this ashram system divided into 4 parts. Okay, 4 parts. 4 parts थे आश्रम सिस्टम के. अब कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्या. ब्रह्मचर्या. ओके. सेकंड आश्रम सिस्टम गृहस्थ जीवन. गृहस्थ. समझ में आ रहा है? गृहस्थ. देन वनप्रस्थ. वनप्रस्थ. ओके. ये याद रखिएगा, वनप्रस्थ. एंड लास्ट संन्यास. संन्यास. तो ये 4 आश्रम आ गए थे. कब? लेटर वैदिक पीरियड में. ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास. समझ में आ रहा है? एंड दिस आश्रम सिस्टम, इसका सोर्स क्या है? कहां से हमें पता लगता है? दिस आश्रम सिस्टम हैज बीन गिवन अंडर छंदोग्य उपनिषद. छंदोग्य उपनिषद. अब ये उपनिषद क्या है मैं आपको वैदिक लिटरेचर में बताऊंगा. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, छंदोग्य उपनिषद. इट इज गिवन अंडर छंदोग्य उपनिषद. इज दैट क्लियर? ये याद रखिए. ओके. सो आश्रम सिस्टम वाज देयर. ओके. नाउ अनदर फीचर ऑफ सोसाइटी. Now another feature of society, Rigvedic, later Vedic. Okay. Now another feature was that society was not divided on the basis of profession. Rigvedic period में society जो थी वो divided नहीं थी. Society was not divided on the basis of profession.
ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। ओके, और ये चीजें हमें कहां से पता लगती है? 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा, ऋग्वेद जो है उसमें दिया हुआ है 9th मंडल में, सोसाइटी वाज नॉट divided on the basis of profession, but discrimination था, society faces discrimination, but faces discrimination। अब डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच में था? दो लोगों के बीच में था। ओके, दो वर्ण थे, श्याम वर्ण एंड श्वेत वर्ण। श्याम वर्ण एंड श्वेत वर्ण, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट। ये याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डिस्क्रिमिनेशन था, सोसाइटी प्रोफेशन के बेस पे डिवाइड नहीं थी, बट इन लेटर वैदिक एज, यस, लेटर वैदिक एज सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, division on the basis of profession। Is that clear? ये याद रखिएगा। एंड सोसाइटी प्रोफेशन के बेसिस पे डिवाइडेड थी। ओके, ये याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि वर्ण सिस्टम था, 4 वर्ण थे एंड वो प्रोफेशन के बेसिस पे थे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। देन गोत्र सिस्टम वाज देयर। गोत्र होता है ना कि गोत्र पूछते हैं आपसे, आपका गोत्र क्या है, तो गोत्र सिस्टम वाज आल्सो देयर। एंड व्हाई दिस गोत्र सिस्टम? फॉर अलायंसेस। गोत्रा सिस्टम से क्या हुआ? अलायंसेस शुरू हुई, मैट्रिमोनियल अलायंस। अगर आप सेम गोत्र के हुए तो आप क्या हो जाएगा? भाई बहन। ओके, तो गोत्रा सिस्टम वाज देयर। समझ में आ रहा है? ओके, सो गोत्रा सिस्टम वाज देयर। मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू होती हैं लेटर वैदिक पीरियड से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, हेड ऑफ द फैमिली गॉट मोर पावर एंड राइट्स। ओके, मोर पावर, दैट मीन्स जो फैमिली में हेड होगा, दैट मीन्स जैसे आपके ग्रैंडफादर या फादर, वो क्या हुए? आपके फैमिली के हेड। तो सोसाइटी कैसी थी? पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल, समझ में आ रहा है? पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, ये याद रखिएगा। बट ऋग वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी? इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन society, egalitarian, equal status in the society. So this is all about the Vedic society। और हमने देख लिया कैसे डिवीजन है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा। तो आप देखेंगे सोसाइटी वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग लेटर वैदिक, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सोसाइटी कैसे डिवीजन है? आर्यंस हैं, society was divided into Aryans, then Aryans थे, और कौन कौन सी रेसेस थी? Aryans, the Saz, okay, then the Sioux। ये 3 मेन रेसेस होती थी। समझ में आ रहा है? सोसाइटी। और मेडिवल अगर पीरियड में पूछूं, मेडिवल पीरियड में सोसाइटी कैसी थी? तो अगर मैं पूछूं मेडिवल पीरियड में सोसाइटी कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे? टर्क्स, मुगल्स एंड राजपूत। ये मेडिवल पीरियड की सोसाइटी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट वैदिक सोसाइटी। समझ में आ रहा है? थर्ड फॉर्मूला ये है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ वैदिक पीरियड, दैट इज वैदिक रिलीजन, एंड आफ्टर दैट द वैदिक पीरियड will be over। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके।